Hello friends, this is Nutan. Welcome to our mavericks channel. आज हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल स्टार्टिंग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कब ऐड करते हैं, उसमें बिगेम मेथड भी आज देखने वाले हैं। तो पहले देखो आर्टिफिशियल स्टार्टिंग सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद में देखते हैं बिगेम मेथड क्या है और उसमें कौन से रूल्स यूज करके हमें वो बिगेम मेथड सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, we have seen the LPP involving the constraints of the type less than or equals to, but if they are of the type greater than or equals to, only using the surplus and slack variables cannot involve unit matrix corresponding to basic variables, and the iteration process is not possible. And for this purpose, a new type of variable is called the artificial variables. Then we have seen in LPP methods, there are using for L less than or equals to constraints, we are using slack variable, and for greater than equal to constraints, we are using subtract the surplus variables. And for equal to, we have not changes in the equations remains the same. And in that process, the iteration process is not possible, and for this purpose, new type of variables are introduced, and that variables is called the artificial variables. So when artificial variables are added to the constraints less than equal to and equal to a very large price, that means per unit penalty to each of such a variables is assigned to objective functions, and this large price is denoted by the minus m. When we are when we are using the artificial variables in the process, then we are used a very large price of variables, that means the minus m, for the maximization types of problems. So m is the very large value, and minus m is the very small value. So एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं कि एग्जाम्पल में हम कैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज करते हैं और उसका मैक्सिमाइजेशन में माइनस एम और प्लस एम कैसे हमें यूज करना है, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। उससे पहले एक मेथड है, इन सिंप्लेक्स मेथड वी हैव less than equal to constraints add the slack variable, greater than equal to constraints subtract surplus variable, and equal to equation remains same. एंड इन बिगेम मेथड में क्या करना है, अगर लेस देन और इक्वल्स टू है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो सब्ट्रैक्ट करना है सरप्लस वेरिएबल्स, और उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी ऐड करना है। अगर इक्वल टू हो तो उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमें ऐड करना है। सो इन सिंप्लेक्स में हम इक्वेशंस रिमेन सेम, और इन बिगेम मेथड में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करना है। सो वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमें यूज करना है। फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं बिगेम मेथड का। तो बिगेम मेथड को पेनल्टी मेथड भी कहते हैं, और उसको कार्न्स पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। सो solve the examples by using artificial variables. So first examples देखते हैं। So example number 1, solve by begin method. So example is max z is equals to x1 minus x2 plus 3x3 subject to x1 plus x2 less than or equals to 20, x1 plus x3 which is equals to 5, x2 plus x3 which is greater than or equals to 10, then x1, x2, x3 all are greater than or equals to
0। सो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको हमें नॉर्मल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो मैक्स z इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट्स टू x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल्स टू है, इसलिए हम स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। इसमें इक्वल्स टू है इसलिए रिमेन्स सेम, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है इसलिए सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो x1 x2 x3 s1 और s2 all are greater than or equals to 0, and by IBFS method initial basic feasible solution put initially x1 x2 x3 is equals to 0। सो यहाँ पे x1 और x2 0 डाला तो s1 की वैल्यू 20 आती है, और यहाँ पे x1 x2 0 डाला, यहाँ पे x2 और x3 की वैल्यू 0 पुट किया तो s2 का वैल्यू नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, s2 इज पॉजिटिव, दैट मीन्स और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे s2 की वैल्यू क्या आई है -10, एंड इसलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करनी पड़ता है। सो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कैसे ऐड करते हैं देखो, बाय इंट्रोड्यूसिंग slack variable s1, surplus variable s2 and artificial variable a1 and a2, the given LPP is reformulated as तो इसका इक्वेशन देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैक्स z इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू, सो फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 20, नेक्स्ट x1 प्लस x3, तो यहाँ पे इक्वल्स टू है इसलिए यहाँ पे हमें वन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे x2 प्लस x3, यहाँ पे हमने सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए यहाँ पे भी हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करने हैं। सो यहाँ पे देखो जो हमने स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल्स यूज किए हैं उसको तो हम 0 ही कंस्टेंट देंगे, और जहाँ पे हमने दो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स किए हैं तो उसका कांस्टेंट हमें -ma1 -ma2 ये देना है। सो x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2 all are greater than or equals to 0। so by IBFS सपोज x1 x2 और x3 ऑल 0 पुट किया तो यहाँ पे s1 आ जाएगा 20, यहाँ पे a1 आ जाएगा 5 और यहाँ पे a2 आ जाएगा 10। सो यहाँ पे हम ये निग्लेक्ट करेंगे और इसकी जगह से हम a2 को ऐड करेंगे। सो ये हुआ हमारा इक्वेशन। अभी हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को, जो हमने सिंप्लेक्स मेथड में जैसे टेबल यूज किया था वैसे ही हमें यहाँ पे टेबल यूज करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे है सीजे और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपी। सो सीजे में है हमारे ऑल कांस्टेंट, सो x1 माइनस x2 प्लस 3x3 और s1 s2 ऐड किए हैं और -ma1 -ma2, सो ये भी हमने ऐड किए। सो यहाँ पे है x1 x2 x3 s1 s2
A1 और A2। नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो हमने ऐड किया है स्लैक वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड सेकेंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू। सो स्लैक वेरिएबल्स का कांस्टेंट है 0, यहाँ पे -m और यहाँ पे -m। सो यहाँ पे हमें x1 x2 x3 जो इक्वेशन है उसके कांस्टेंट्स डालने हैं। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x1 प्लस x2 प्लस s1। सो x1 प्लस x2 प्लस s1, बाकी ऑल सब 0 0 0। सो हमारा सेकेंड इक्वेशन है x1 प्लस x3 प्लस a1। सो बाकी के सब 0 आ जाएंगे। और हमारा थर्ड इक्वेशन है x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 माइनस s2 और a2। सो यहाँ पे ये बाकी के 0 आ जाएंगे। सो यहाँ पे b के कांस्टेंट आ जाएंगे। सो फर्स्ट था 20, नेक्स्ट 5 और ये 10। सो नेक्स्ट हमें zz निकालना है। सो zz के लिए फॉर्मूला 0 × 1 प्लस -m × 1 प्लस -m × 0। तो यहाँ पे -m आ जाएगा, यहाँ पे भी -m आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे -m, सो -2m, ये 0 आ जाएगा, ये +m आ जाएगा, ये -m आ जाएगा, यहाँ पे भी -m आ जाएगा और यहाँ पे -5m -10m यानी कि -15m आ जाएगा। सो नेक्स्ट जेड से -cj निकालें। -m -1, -m +1, -2m -3, ये 0, ये m, -m +m 0, -m +m 0। सो अभी इस टेबल में हमें मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट देखना है। सो यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, m का कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट ये आ जाएगा। सो सपोज m का वैल्यू 1 डालते हैं, तो m का वैल्यू यहाँ पे 1 डाला तो ये -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 1 डाला तो ये -1 आ जाएगा। तो इसमें से मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा रहता है, ये यानी कि ये जो -2m -3 है ये मोस्ट नेगेटिव है। अब इस टेबल से ये जो टेबल है x3 का, उससे हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है। सो रेशियो के लिए फॉर्मूला है b डिवाइड बाई दिस कॉलम। सो 20 डिवाइड बाई 0, सो ये 0 आ जाएगा, ये निगलेक्ट करेंगे हम। 5 डिवाइड बाई 1, सो ये 5 आ जाएगा और ये 10 डिवाइड बाई 1 के लिए 10 आ जाएगा। सो इसमें से हम मोस्ट नेगेटिव देखते हैं और इसमें से हम जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है उसको देखते हैं, 0 और नेगेटिव निगलेक्ट करते हैं, तो इसमें से ये आ जाएगा। सो इसमें पैरिटी एलिमेंट ये 1 आ जाएगा। सो इसको हम पैरिटी बोलेंगे। तो नेक्स्ट फिर से हमें ये पैरिटी आया है 1, सो इसका कॉलम है x3, यानी कि a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम x3 से रिप्लेस करेंगे और उसका कांस्टेंट हम 3 डालेंगे। सो इसके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स है उसको हमें 0 करना है बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस। सो नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे फिर से cj xp, तो ये 1 -1, ये 3, ये 0, ये 0, ये -m, ये -m और यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 a1 और a2। तो यहाँ पे था s1, अभी ये a1 x3 से रिप्लेस हो जाएगा, a2 रिमेन्स सेम। सो अभी यहाँ पे देखो, अभी इस कॉलम में ये 0 है तो ये रो सेम रहेगी, इसको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो ये थर्ड कॉलम में थर्ड 1 के नीचे जो ये थर्ड रो है उसमें 1 है, उसको हमें 0 करना है और उसके लिए हमें रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट रो रिमेन्स द सेम, सो वो हम
ऐसे ही लिखेंगे। सो फर्स्ट रो रिमेन सेम, तो 1 1 0 1 0 0 0 और ये 20। सेकेंड रो भी 1 0 1 0 0 1 0 और ये 5। अभी थर्ड थर्ड रो में सॉरी, अभी थर्ड रो में जो 1 था उसको हमें जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए हमें रो ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, कौन सा, R3 माइनस R2 का। सो 0 माइनस 1 तो ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 0 ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 -1 1 और यहाँ पे जो 10 है तो 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, सॉरी। सो ये रो ऑपरेशंस हमने यहाँ पे यूज किए हैं, ये भी यहाँ पे हमने चेंज किया है। सो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हम ZJ निकालते हैं। सो ZJ में ना 3, यहाँ पे 0 होगा, 3 माइनस माइनस प्लस, सो ये 3 प्लस M आ जाएगा, ये -M आ जाएगा, ये 3, ये 0, ये M, ये 3 प्लस M, सॉरी, यहाँ पे -M आ जाएगा और यहाँ पे 15 माइनस 5M आ जाएगा। सो यहाँ पे Z से माइनस CJ करेंगे, 3 प्लस M माइनस 1 यानी कि 2 प्लस M आ जाएगा, -M प्लस 1 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0, M माइनस 0 M, 3 प्लस M माइनस M माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे 3 प्लस 2M आ जाएगा, -M प्लस M 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, ये तो ऑल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव ये आ जाएगा। सो इसके लिए हमें ये कॉलम यूज करना पड़ेगा और ये कॉलम से हमें यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा। सो रेशियो आ जाएगा ये हमारा 20/1 यानी कि 20, 5/0 तो ये हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा और 5/1 के लिए ये 5 आ जाएगा। सो ये मोस्ट पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव हुआ। सो इसके लिए ये पेनल्टी हुई हमारी, सॉरी पैरिटी बिट हुआ ये हमारा। सो ये पैरिटी बिट है। सो ये पैरिटी बिट आए हैं x2 के कॉलम में। सो x2 को हम a2 को हमें x2 से रिप्लेस करना पड़ेगा और उसका जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे हमें लिखना है। सो नेक्स्ट टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं देखो। सो यहाँ पे देखो, CJ XB, सो 1 -1 3 0 0 -M -M। सो यहाँ पे x1 x2 s1 s2, ये सॉरी x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2। सो यहाँ पे s1 है 0, सो फर्स्ट x3 3, अभी a2 हमें x2 से रिप्लेस करना है और उसका कांस्टेंट है -1। सो यहाँ पे देखो, ये जो 1 है ये तो ऑलरेडी 1 है, इसको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसके ऊपर के हमें 0 करने हैं। सो सेकेंड रो तो 0 है, वो भी रिमेन सेम है, सिर्फ फर्स्ट रो के लिए रो ऑपरेशन यूज करना है हमें, ताकि R1 माइनस R3 का। सो टेबल सेकेंड रो थर्ड रो रिमेन्स द सेम। सो सेकेंड रो थर्ड रो लिखते हैं पहले, 1 0 1 0 0 1 0 और यहाँ पे 5। x3 है -1 1 0 0 -1 -1 1 और यहाँ पे 5। सो x R1 माइनस R3 का रो ऑपरेशन यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है। R1 के लिए हमें ऊपर का जो फर्स्ट रो है वो यूज करना है और R3 के लिए हमें ये रो यूज करना है।
सो फर्स्ट एलिमेंट था हमारा 1, 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, सो 1 माइनस 0 1, नेक्स्ट 0 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1, यहाँ पे भी 0 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1, यहाँ पे 0 माइनस 1 यानी कि ये माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 माइनस 5 तो ये 15 हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम जेड जे निकालते हैं। जेड जे के लिए देखो 3 प्लस 1 ये 4 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, सो ये प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, और ये 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। सो नेक्स्ट जेड जे माइनस सी जे, 4 माइनस 1 3, माइनस 1 प्लस 1 0, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे भी 0, सो 1 माइनस 0 1, 4 माइनस माइनस एम यानी कि 4 प्लस एम, ये माइनस 1 प्लस एम। सो यहाँ पे देखो ये जेड जे माइनस सी जे ऑल आर ग्रेटर देन प्लस एम आया है, यानी कि एम इज द वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। सो यहाँ पे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। सो जेड जे माइनस सी जे ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे वैल्यूज देखो, सो वैल्यूज हमें मिले हैं, S1 की वैल्यू है 50, X3 के लिए वैल्यू है 5 और X2 के लिए वैल्यू है 10। सो जो हमारा मैक्स जेड का जो इक्वेशन है, सो x1 माइनस x2 प्लस 3x3, सो इसमें वैल्यूज हम डालेंगे। सो x1 की वैल्यू नहीं है इसलिए वो 0 है, x2 की वैल्यू है 10 और ये 5, सो 0 माइनस 10 प्लस 15, सो इसका आंसर आया है 5। सो मैक्स z इज इक्वल्स टू 5। सो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर और मैक्स z की वैल्यू। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मीन z is equals to 12x1 plus 20x2 subject to 6x1 plus 8x2 greater than or equals to 100, 7x1 plus 12x2 greater than or equals to 120, x1 और x2 is greater than or equals to 0। सो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना है। सो मीन जेड को मीन जेड 12x1 प्लस 20x2 सब्जेक्ट टू, सो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, इसलिए हमें सरप्लस वेरिएबल्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो इसमें भी देखो, सो x1 x2 s1 s2 all are greater than or equals to 0। So by IBFS, put x1 or x2 is 0. So we got s1 is minus 100 and s2 is minus 120. So s1 s2 यहाँ पे 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आए हैं। सो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करने हैं। सो हमारा इक्वेशन क्या होगा देखो, by using artificial variable,
सो मिनिमम का मैक्स में कन्वर्ट करते हैं हम पहले। सो चेंज होगा साइन, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। सो सब्जेक्ट टू 6x1 प्लस 8x2 माइनस S1 प्लस A1, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट 7x1 12x2 माइनस S2 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 1 2। यहाँ पे x1 x2 S1 S2 A1 A2 all are greater than or equals to 0. So by using IBFS, put x1 x2 0, then A1 we have got 100 and A2 will have got 120. So these are the positive values. So यहाँ पे देखो हमने सरप्लस वेरिएबल्स सबट्रैक्ट किए थे और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के लिए माइनस m। सो टेबल ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे है सीजे एक्स बी और सी बी। सो सीजे में x1 x2 S1 S2, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कांस्टेंट है हमारा 12 माइनस 12 माइनस 20 0 0 माइनस m माइनस m। सो x1 x2 S1 S2 A1 A2। सो यहाँ पे A1 और A2 यूज करेंगे, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं वो उसका कांस्टेंट आ जाएगा माइनस। सो यहाँ पे 6 8 माइनस 1 0 1 0 7 12 0 माइनस 1 0 1। यहाँ पे कांस्टेंट 100 और यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएंगे। सो जेड निकलती है। जेड के लिए यहाँ पे आ जाएगा -6m -7m। यहाँ पे यानी कि -13 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -20m, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये -m आ जाएगा। यहाँ पे भी -m आ जाएगा और ये -100 -120 यानी कि 100 -100 -120 -220m आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारी जेड जे माइनस सी जे के लिए। सो -13m -12, यहाँ पे भी -20m -20, ये m आ जाएगा, यहाँ पे भी m आ जाएगा, -m + m 0 -m + m 0 आ जाएगा। सो इसमें से हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो इसमें है मोस्ट नेगेटिव। सो यहाँ पे -13m है और यहाँ पे -20, सो ये मोस्ट नेगेटिव हुआ। सो इसमें ये कॉलम आ जाएगा। सो ये कॉलम से हमें इसको डिवाइड करना है ताकि हमें रेशियो मिले। सो ये 100/8 यानी कि समथिंग 12.5 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 120/12, सो ये 10 आ जाएगा। सो इसमें मिनिमम पॉजिटिव कौन सा है, 12/12.5 और 10 में से जो है 10। सो ये जो 12 है, ये 12 है हमारा पैरिटी एलिमेंट। सो ये जो पैरिटी है 12, तो इसको हमें 1 करना है, यानी कि थ्रू आउट ऑल जीरो, ऑल रो को हमें 12 से डिवाइड करना है और उसके ऊपर का जो 8 है उसको हमें 0 कन्वर्ट में करना है। सो इसके लिए रो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। सो पहले रो ऑपरेशन इसको हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि R2/12 का, ताकि ये 12 का जो है उसका 1 में कन्वर्शन हो जाएगा।
सो फिर से हमें टेबल ड्रॉ करते हैं और ये जो पैरिटी है, सो यहाँ पे x2 है यानी कि a2 का x2 से रिप्लेस हो जाएगा और ये -m का 20 से रिप्लेस हो जाएगा। सो नेक्स्ट टेबल cj xb cb -12 -20 0 0 -m -m। So x1 x2 s1 s2 a1 a2। सो यहाँ पे a1 है उसका माइनस है नहीं, अभी a2 हमें x2 से रिप्लेस करना है और उसका कांस्टेंट आ जाएगा 20। सो पहले हम सेकेंड रो को 12 से डिवाइड करेंगे। सो पहला एलिमेंट आ जाएगा 7/12, 12/12 1, 0/12 0, -1/12 0, 1/12 और 120 का 10 आ जाएगा। 120/12 यानी कि 10 आ जाएगा। और अभी फर्स्ट रो के लिए हमें रो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट रो के लिए कौन सा रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, r1 - 8 r2 का, ताकि इस 8 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। सो r1 8 -8 यहाँ पे 0 आ जाएगा। r1 है 6 6 -8 इंटू 7/12। सो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट r1 है -1 -8 इंटू r2 0। सो यहाँ पे -1 हो जाएगा। नेक्स्ट r1 है हमारा, नेक्स्ट r1 है 0। सो 0 -8 इंटू r2 है -1/12। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे -8 और यहाँ पे जो 100 था यानी कि 100 -8 इंटू 10। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20। सो अभी हमें जेड निकालना है। जेड के लिए देखो -4m/3, तो इसका कैलकुलेशन करना है हमें। सो यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करते हैं। सो ये -4m/3 तो -20 इंटू 7/12। सो इसका सो -4m/3 -35/3। So ZZ will be -4m प्लस 1/3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इसका आंसर m आ जाएगा। यहाँ पे -2m प्लस 5/3। सो यहाँ पे -m आ जाएगा। सो ये A2, यहाँ पे हमने A2 को रिप्लेस किया है, इसलिए ये टेबल हम निग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, यानी कि टेबल A2 जाएगा यहाँ से। सो ZJ - CJ निकालेंगे। यहाँ पे ZJ था हमारा -4m -35 डिवाइड बाई 3। फिर से निकालते हैं हम ZJ।
-4m/3 -35/3 और यहाँ पे 0, यहाँ पे -20 आ जाएगा, यहाँ पे +m आ जाएगा, यहाँ पे -2m/3 +20/12 ये -m आ जाएगा। सो अभी ये कैलकुलेशन करनी है हमें। सो -4m -35 माइनस माइनस +20, सो -4m -35 +36/3 यानी कि -4m +1/3। सो यहाँ पे आ जाएगा -4m +1/3, ये -20, -20 +20, सो ये 0 आ जाएगा, z माइनस सी से है। सो -20 +20 ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे z माइनस सी जे -0 और ये -2m +5/3 और ये -m आ जाएगा। अभी इसमें से हमें मोस्ट निगेटिव देखना है। सो मोस्ट निगेटिव है इसमें से -4m, यहाँ पे -2 है। सो ये है हमारा मोस्ट निगेटिव एलिमेंट। सो इस कॉलम से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। सो ताकि यहाँ पे हमें रेशियो मिले। सो 20 /4/3, सो ये 15 आ जाएगा और यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पे 5/4 आ जाएगा। सो इसमें से मिनिमम है 5/4, 120/7 यानी कि 120/7 यानी कि 17.1। सो मिनिमम होगा हमारा ये 15। सो 15 यानी कि ये 4/3 होगा हमारा पैरिटी बिट, ये होगा हमारा पैरिटी बिट। सो पैरिटी बिट यानी कि 4/3 होगी। 4/3 को हमें 1 करना है यानी कि 3/4 से डिवाइड करना है थ्रू आउट ऑल द रो, ताकि यहाँ पे 1 मिले और इसके नीचे का 0 करना है। अभी हम a1 को x1 से रिप्लेस करेंगे और -m को -12 से लगेगा। सो फिर से हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। सो cj cb xb, सो -12 -20 0 0 -m -m और xb में आ जाएगा x1 x2 s1 s2 a1 a2। सो a1 को हमें x1 से रिप्लेस करना है और यहाँ पे -12 आ जाएगा और यहाँ पे x2 है, सो -20 आ जाएगा। सो 4/3 से डिवाइड करना है थ्रू आउट ऑल द रो, सो 3/4 से। सो फर्स्ट एलिमेंट होगा 1, नेक्स्ट होगा 0, यहाँ पे -3/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, a1 का आ जाएगा 3/4। सो यहाँ पे a1 भी गया है, a2 भी गया है, इसलिए ये दोनों कॉलम हमें स्किप करनी है। अभी x2 में चेंजेस होगा, x2 में 7/12 है। सो इसके लिए रो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, r2 -7/12 r1। सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0, नेक्स्ट आ जाएगा 1, सो नेक्स्ट आ जाएगा 7/16 बाय यूजिंग दिस रो ऑपरेशंस। सो जेड निकालेंगे हम, जेड के लिए आ जाएगा ये -12, ये -20, यहाँ पे आ जाएगा ये
इसका कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन करते हैं। सो ये -12 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 12 इंटू 3/4 -20 इंटू 7/16। सो यहाँ पे आ जाएगा 9। सो 35/4। सो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे -12/2 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 3/8। सो ये -6 आ जाएगा। सो ये 15/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। सो नेक्स्ट जेड से माइनस सी जे निकालते हैं। -12 + 2 -20 + 20 0। सो यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मिले हैं हमें। तो यहाँ पे देखो ऑल zj minus cj all are greater than or equals to 0, and therefore this is optimal solution. So हमें x1 और x2 के वैल्यूज मिले हैं। x1 की वैल्यू है 15 और x2 के लिए वैल्यू है 5/4। सो मैक्स z में हम ये वैल्यू डालेंगे -12x1 -20x2। सो -12x1 यानी कि 15 और -20 इंटू 5/4। सो यहाँ पे -180 आ जाएगा और यहाँ पे -25। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -205 यानी कि -z'। तो वैल्यू आ जाएगी -0205। सो ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। मैक्स z is equals to 3x1 minus x2 subject to 2x1 plus x2 greater than or equals to 2, x1 plus 3x2 less than or equals to 3, x2 is less than or equals to 4, and x1 x2 is greater than or equals to 0। तो पहले हमें स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना है। तो मैक्स z is equals to 3x1 minus x2 subject to 2x1 plus x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, यानी कि s1 आ जाएगा। यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे और यहाँ पे x2 है, सो लेस देन और इक्वल्स टू है। सो यहाँ पे भी हम स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। सो यहाँ पे x1 x2 s1 s2 और s3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे देखो s1 सपोज बाय IBFS अगर x1 और x2 हमने 0 पुट किया तो s1 हमारा नेगेटिव आ जाएगा, s2 3 आ जाएगा और s3 4 आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करना है। सो नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन होगा मैक्स z इज इक्वल्स टू 3x1 माइनस x2। सो इसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करेंगे। सो
2x1 प्लस x2 माइनस s1 प्लस a1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे तो हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड किया है, इसलिए नो चेंज। यहाँ पे भी हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया है, ऑल्सो नो चेंज। सो यहाँ पे देखो हमें 0s1 0s2 0s3 माइनस m a1 और यहाँ पे x1 x2 x1 x2 s1 s2 s3 a1 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमें टेबल ड्रॉ करनी है। अभी टेबल ड्रॉ करने के लिए पहले हमें यहाँ पे सीबी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सीबी, यहाँ पे एक्सबी। एक्सबी में है हमारा x1 x2 s1 s2 s3 और a1। सो इसके कांस्टेंट में है 3 -1 0 0 0 और ये -1। तो यहाँ पे हमें a1 s2 और s3 जिससे सरप्लस वेरिएबल्स है वो हम यहाँ पे नहीं डालते हैं। सो a1 का है -m, s2 और s3 का है 0। सो इसमें हमें वैल्यू स्प्लिट करनी है। सो 2 1 -1 0 0 1। सो x1 है हमारा 1, x2 है 3 0, s2 है 1, s3 है 0 और यहाँ पे a1 तो नहीं है। नेक्स्ट x1 नहीं है, x2 है हमारा 1 और s3 है हमारा 1। सो बाकी के 0 और यहाँ पे a1 भी नहीं है इसलिए 0। सो कांस्टेंट है हमारे 2 3 एंड 4। सो जेड निकालेंगे। सो जेड में है -2m -m प्लस m 0 0 और -m। सो -2m -m m 0 0 -m। नेक्स्ट निकालेंगे zz -cz। सो -2m -3 ये -m प्लस 1 ये m ये 0 ये 0 -m प्लस m यहाँ पे 0 आ जाएंगे। सो यहाँ पे भी -2m z। सो इसमें से हमें मोस्ट नेगेटिव फाइंड आउट करना है। सो मोस्ट नेगेटिव है हमारा ये आ जाएगा मोस्ट नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे 2 कांस्टेंट है इसका और इसका कांस्टेंट है 1, इसलिए ये मोस्ट नेगेटिव आ जाएंगे। सो ये मोस्ट नेगेटिव है इसलिए इस कॉलम से हमें इस बी को डिवाइड करना है और रेशियो निकालना है। सो रेशियो के लिए रेशियो के लिए 2/2 1 आ जाएगा, 3/1 3 आ जाएगा और 4/0 0 आ जाएगा। सो इसमें से मिनिमम वैल्यू है हमारी 1। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे। सो ये है हमारा पैरिटी बिट। सो पैरिटी बिट है ये 2 2 को हमें 1 करना है और ये a1 को x1 से रिप्लेस करना है, -m को 3 से रिप्लेस करना है, 2 को 1 करना है यानी कि 2 से ऑल रो को डिवाइड करना है 2 से, और ये 1 को 0 करना है और 0 तो ऑलरेडी है, यानी कि हमारा फिर से नेक्स्ट टेबल आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टेबल आ जाएगा। सो cj 3 -1 0 0 0 -m x1 x2 s1 s2 s3 a1। अभी चेंज होगा, a1 को हमें x1 से रिप्लेस करना पड़ेगा और ये कांस्टेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। और नेक्स्ट होगा हमारा s2 s3 विथ कांस्टेंट 0 0।
अभी जो 2 है उसको हमें ऑल रो को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे ये 1 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ये 0, ये 0, और यहाँ पे माइनस, सॉरी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे बी है हमारा 1 आ जाएगा। सो जो थर्ड रो है वो 0 है, इसलिए वो सेम रहेगी, 0 1 0 0 0, और ये 0, और ये 4। अभी जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो में हमारा एलिमेंट है 1, और 1 को हमें 0 करना है, और इसके लिए हमें रो ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा, R1 R2 माइनस R1 का। सो 1 - 1 0 आ जाएगा, 3 - 1/2, सो ये 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 माइनस माइनस 1/2 यानी कि +1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 - 0 तो 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा, और ये -1/2, R2 माइनस R1, सो 3 - 1, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो जेड जे निकालेंगे, जेड जे के लिए पहले 3 आ जाएगा, नेक्स्ट अगेन 3/2 आ जाएगा, सो -3/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट जेड जे माइनस सी जे निकालनी है, सो 3 - 3 0, 3/2 -1 यानी कि 5/2, -3/2 0 0, 3/2 -m, 3/2 माइनस माइनस प्लस m आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस m। सो यहाँ पे देखो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है -3/2, और -3/2 से हमें, यानी कि ये कॉलम से हमें ये रेशियो निकालना है। सो रेशियो में देखो 1/-(-1/2) यानी कि ये -2 आ जाएगा, विच इज निगलेक्ट। यहाँ पे देखो 2 यानी कि 1 आ जाएगा, 2/(1/2) यानी कि 4 आ जाएगा, और ये 4/0 यानी कि 0, तो ये भी हमें निगलेक्ट करना है। सो इसमें से ये 4 एलिमेंट होगा। सो इंटरसेक्शन पॉइंट है 1/2, सो 1/2 को हमें 1 करना है, और बाकी सब दोनों ये को हमें 0 करना है। सो 1/2 को 1 करने के लिए हमें 2 से और यहाँ पे S2 भी चेंज होगा, S2 की जगह पे S1 आ जाएगा, और उसका कांस्टेंट 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं नेक्स्ट टेबल में। सो CJ CB XB, so CJ will be 3 - 1 0 0 0 -m, x1 x2 s1 s2 s3 and a1। सो यहाँ पे फर्स्ट x1 मिला, तो उसका वेरिएबल -3 था, अभी S1 से रिप्लेस करना है, उसका 0 आ जाएगा, और यहाँ पे S3 रिमेन्स सेम 0। तो जो 1/2 है उसको हमें 1 करना है, सो 2 से डिवाइड करेंगे, सो सेकेंड रो विल बी 2 5 1 1/2 0 -1, और ये 4 आ जाएंगे। सो थर्ड रो विल सेम बिकॉज इट है ऑलरेडी 0। सो फर्स्ट रो में चेंज होगा, फर्स्ट रो के लिए रो ऑपरेशन आ जाएगा, तो -1/2 है यहाँ पे, इसलिए R1 +1/2 R2 का यूज करेंगे। सो फर्स्ट रो विल बी 1 3, by using this row operations we have got the values this। सो नेक्स्ट हम निकालेंगे ZJ। सो ZJ में होगा हमारा ये -3, सो ZJ के लिए ये +3,
+3। नेक्स्ट ZZ के लिए आ जाएगा ये 9। नेक्स्ट आ जाएगा ये 0। नेक्स्ट ये 3 0 आणि नेक्स्ट ये 0। और यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। सो ये 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। सो ZZ माइनस CG। सो 3 माइनस 3 0। 9 प्लस 1 10। यहाँ पे 0। सो यहाँ पे 3 0। और ये 0 माइनस माइनस m यानी कि प्लस m। सो यहाँ पे देखो ZZ माइनस CZ ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो दिस इज आवर ऑप्टिमल इक्वेशन। This is optimal solution. So we have got this optimal solution. So our equation max Z is equals to 3x1 minus x2. So x1 की वैल्यू मिली है हमें यहाँ पे 4। x1 मिला है 4। x2 नहीं है इसलिए वो 0 है। So max Z is equals to 3 into 4 minus 0। सो इसका आंसर आ जाएगा। सो x1 इज 1, x1 इज 3। यहाँ पे x1 की वैल्यू है 3। सो 3 इंटू 3 9। सो मैक्स Z इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। सो Z का वैल्यू है 9। सो ये 3 एग्जांपल्स आज हमने यहाँ पे देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इस टाइप के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अभी मैं इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।